Hello, everyone. I'm Nishant, and I welcome you all to this amazing podcast with one of the senior software engineers at Microsoft, the man with hands on experience in building high scale distribution systems at Microsoft, Meta, and Tata 1MG. He has core expertise in engineering leadership, system architecture, and data privacy. Today, we have the privilege of welcoming Mr. Shubham Mehta, sir, in this third episode of our podcast series, Speak to Lead, where we invited industry experts from multiple domains, which would help students across the world. Thank you so much, sir, for being with us today, and it means a lot for everyone. Sir, before starting, could you deliver a brief introduction about yourself for our audience? Sure, sure. First of all, thank you for choosing me. And like, I can be of any help around that. Definitely. So, considering me for this option, that's very great of you. And about me, I have completed my BTech from Arya College only, 2014. Actually, it's 12 years back. Yes. And yeah, it's been 12 years, worked with multiple companies, you can say startups, FANG, mid level companies, and all those things. Quite an experience, I would say. Learned a lot of things. And yeah, I still remember, like I was discussing with one of you yesterday, and like with Netik actually. And it was a nostalgia hit, like, okay, Arya College, yeah, we have done those things. Those memories were there. So yeah, it's quite great to be here and that, you know, communicating with someone of our own community here. So really, it is great to have you here as an alumni of Arya College. Sir, you have worked across multiple one of you have worked across world's leading technology companies, including Meta, Microsoft, and many more. So, could you tell me what initially sparked your interest in this field, in the field of software engineering? Yeah, see, from starting, like in childhood, when I don't know computer, I once first I see a computer. I used to see my sister used to go for, learn some tally tool or something like that. And I used to go along with her. I was like 6, 7 year old and I saw computer. Oh, it's fascinating. It's always started with video games, right? You see in a cyber cafe or coaching institute, there's a computer, you are doing something. That sparked, like, okay, this is something fascinating. We can have our own world over there. I was not aware ki there's a software engineering kind of thing around that. So that new thing, that new gadget, I always like gadgets. So when I saw first computer, I was very fascinated by that. And crazily, in my family, in distant relatives, there were software engineers. There was one of the first software engineer in my family, I would say. I used to meet him, ask questions. I ask a lot of questions around that. So they told me like, okay, we do this thing, that thing. I was like, okay, it is possible. आप अपना खुद का भी ऐसे जैसे कुछ बना सकते हो, like you do a what a plus b equals to c, right? That's kind of a normal addition around that. I love mathematics, so I used to see, oh, we can simplify those things. Calculator was fascinating for me for a bit, like okay, यार कितना easy हो जाता है चीजें. So yeah, that was the initial part which started, and I made up my mind that if I get a chance, definitely I'll go with computer. I'll learn computer, not even the video or something. I'll learn how to do those things, how to do, play games around that. It's really fascinating. I'm talking about, in the around 2007, 2006 time when I first got a chance to take up T of computer science. And everyone told me like, okay, in 11, 12, don't take computer science. You're going to change it to economics or physical education or something like that. So do that. Like, होता है फेल होंगे तो चेंज कर लेंगे. Let's try it out. तो वो ट्राई करने में और एक्सप्लोर करने में I love working right with the technology and all those things. And that was the spark which says that no, यही फील्ड पे जाना है. कोई दिक्कत नहीं है. Either it's computer science branch or IT branch or whatsoever in college, I'll take it. मेरे को बस कंप्यूटर्स के पास रहना है, ज़्यादातर काम उस पे करना है. So yeah, वो अर्ली क्यूरियोसिटी जो थी, बाद में इंटरेस्ट में डेवलप हुआ. एंड once you do things right, one or two things you are able to accomplish. Like in college, I did. Oh, one क्रिएट करता है. आप one win also target to another, right? Or one failure is an obsession to win. तो वो वाली चीजें हैं. And that's how I, carry forward my passion around that, or my interest in terms of computer. And I know about, okay, there's something called software engineering. We should do that. And you can make people's life easy with that.
So that was the first impact I had. Like यार जैसे बहुत कुछ चीजें easy हो जाती है. That is very good. Let's do it. So yeah, overall that's how it goes. Everyone has their different story. That was mine. That's how I come to this particular stream and chose, to work around those things and learn. So that is really far more exciting and interesting from your side. It reminds me of the story of Steve Jobs, as he also had this kind of initial days and technical field. He's a legend, man. ये तो like nowadays everyone has a computer, mobiles, everything handy, right? उस टाइम पे it used to be in schools or बहुत टाइम के बाद I got a laptop or something. So yeah, वो चीज़ लगकर चीज़ है. And then Steve Jobs is something you are comparing with someone like Yeah. we are nowhere near to him. But yeah, it's nice. A little spark is required always to do something. Yes, sir. Sir, what were the biggest challenges which you faced in your professional life in the early years? And also, if there was any turning point which accelerated your growth in the career in tech, specifically, if you want to tell us. In career, if we are talking about, sorry, what was the first part you're saying? Like turning on. Biggest challenges which you faced in early life. Yeah. So I was my first company, if I can say the name, it was George Technology Group. It was one of the most, you know, you can say technology oriented or coding oriented company. Like if you're a good coder, it doesn't matter. At least at my time, maybe it relevant right now as well. Relevant. It has relevance right now with the company structure and recruitment policy. They don't much go for the academics. They go for how much you are into coding or engineering specifically, and how much you are interested in that part. Back say you can clear it out. That's perfectly fine. English number come, it doesn't matter. So in that company, I learned a lot, and I learned one key thing. So let me tell you step by step. What you learn in college, right, or in school, it's like 10% what you're going to utilize after selection process. उसके बाद एक्चुअल में जो काम करना था इट इज क्वाइट डिफरेंट. आपने जावा में सर्टिफिकेशन किया, नॉट पॉसिबल कि आप कंपनी में जाओगे वहां आपको जावा ही करना है. वेरी लकी पीपल हैव दैट सिनेरियो. मेरे साथ था, आई स्टार्टेड विद पाइथन एंड अर्लियर इट वाज सर्विस बेस्ड कंपनी, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, राइट. And at one moment, there was one task was given that I have to, modify something related to media servers. मेरे को पता भी नहीं क्या होता है. And they asked me that you have 15 days, figure it out, how we can do that. जब उसको देखा, I was like, ये तो मैं कर ही नहीं सकता. एक लाइब्रेरी है, उसको अपडेट करना है, कुछ सो एंड सो टिपिकल टास्क करना है, ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स करनी है. एंड आई वाज लाइक, नहीं ये तो आता ही नहीं है मेरे को. हाउ कैन आई डू इट? बट आई हैड 15 days, I have to do something, so let's try. एंड आफ्टर 15 days I had something ready कि यार हम इसको ऐसे कर सकते हैं. Ultimately the point is I was able to complete that with the help of you can say seniors or जो भी थे वहाँ पे. And that gave me one insight that everything is possible. Limit is in there. Like यार मेरे से होगा नहीं, यार aptitude बहुत tough है, मेरे से होगा नहीं. You have to show some trust in the process and you have to keep aligned with that. आप करो ला यार, ट्राई तो करो, क्यों नहीं होगा. तो वो दिन था जब मैंने वो कंप्लीट किया एंड आई फेल्ट लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल. इट्स नथिंग लाइक आई कैन डू इट. वो एक माइंडसेट होना चाहिए. यार ट्राई तो करते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा. लाइक मैं नैतिक से बात कर रहा था, नैतिक सेठ की सर आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस, आई डिडंट कॉल. मैंने कहा कर लो कॉल, आई कट इट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राइट. वो करेज रखो करने का, स्टार्ट करने का. तो वो मेरी लर्निंग थी, मेरे को वहां से मिली थी कि इट्स ओके इफ यू डोंट नो थिंग्स, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश एंड देखो क्या होता है आगे. सो वो एक टर्निंग था, वो एक चैलेंज था जो मैंने कंप्लीट किया एंड इट गिव मी अ वेरी गुड लेसन अराउंड दैट. और अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्चुअली इन माय करियर अदर देन ऑल दोस लर्निंग्स, 1mg में जब मैं था, एक प्रोजेक्ट आया था कोविड के टाइम में, दैट्स कॉल्ड रैपिड डिलीवरी. 1mg ने मेडिसिन 2 घंटे में, पहले मैं स्टार्ट किया था 1 day or 2 day डिलीवरी, देन इट टर्न आउट टू बी 4 day डिलीवरी एंड आई वाज अ की पार्ट यू कैन से फ्रॉम द ऑर्डर मैनेजमेंट साइड. कि हम, मेरे साथ में बहुत लोग थे, हम साथ में मिलके वो चीज़ बना रहे थे. एंड जब वो चीज़ लाइव हुआ
एंड आई सो द इम्पैक्ट इट मेक ऑन पीपल कि कितना इफेक्ट पड़ा यार कोविड टाइम में मेडिसिन वगैरह टाइम पे डिलीवर होना बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ और मेरे को बहुत मोटिवेशन उस वे में मिला कि यार आई कैन हेल्प आउट पीपल इन दैट वे। ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने के लिए या सीखने के लिए करो, डेफिनेटली वो अलग चीज़ है, वो सब जॉब करते हैं उसके लिए करते हैं। बट वहाँ पे एक इम्पैक्ट का सिनेरियो आया एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ एंटायरली कि यार आगे जाके अगर मैं कुछ काम करूँगा, सो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि उस इम्पैक्ट हो लोगों पे। एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और जो भी कंपनीज़ में मैंने काम किया, आई मेक श्योर कि एट लीस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई कैन मेक सम इम्पैक्ट। बिकॉज़ यार किसी की हेल्प या कुछ किसी की लाइफ में इम्पैक्ट करने में जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन किसी को वो ना हो, वो इट इज़ एट अनदर लेवल व्हिच मोटिवेट्स यू मोर और इट मेक यू गुड पर्सन इन माय बिलीफ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला वन वे और अनदर। एंड उससे मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि यार हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए काम नहीं करना है, हम काम करते-करते ये चीज़ें भी कर सकते हैं। सो या अगेन माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट, these are the two key things. The first challenge I got, like in my first year only in Josh, that make me realize that I can do anything if I set my mind on. I just have to start. ठीक है, फेल होंगे वापस करेंगे कोई लोड नहीं है। That's how. Yeah. दैट इज रियली नाइस सर। सर आपने लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे काम किया है। ये टर्म काफ़ी न्यू है। अगर हम टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए देखें तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स में ये टर्म पॉपुलर नहीं है, नहीं पता होता लोगों को इसके बारे में। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज़ बिल्डिंग एट स्केल रियली मीन और दीज़ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स रियली वर्क? हाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? Yeah, significance again, that's a kind of a theoretical or knowledge part आता है यहाँ पे। We are talking about distributed systems. As the name says, जैसा नाम है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है सिस्टम आपका पूरा सब जगह पे। बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा। तो एक चीज़ है कि यार यूजुअली क्या होता है, हम जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, वी कीप वन सिंगल रेपो, एक कोड स्ट्रक्चर ले लिया, उसमें सब कुछ डाल देते हैं कि यार एक फ़ोल्डर बना देंगे, इसमें फ्रंट एंड आ जाएगा, इसमें बैक एंड आ जाएगा, इसमें डाओ, डीटीओ एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें होती हैं सब एक साथ कर देते हैं। यार लॉगिन करना है, एक फ़ाइल पे लॉगिन हो जाएगा, सारा कोड वहाँ लिख देंगे, एक आपको कुछ पेज में कुछ सर्च करके देना है, वो कर लेंगे। दिस इज़ गुड फॉर अ स्मॉल लेवल लगा, अगर आपको कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह में ऐसे नॉर्मली जाना है या ज़्यादा आपके यूज़र्स नहीं है। आप चीज़ को देखो कि यार एक यूज़र इंडिया में बैठा है, एक यूएस में, एक यूके में बैठा है। तो टोटली डिफरेंट टाइम ज़ोन्स, डिफरेंट डिस्टेंट बेसिकली। वहाँ पे अगर आपको एक ही चीज़ रखनी है, तो पहली चीज़ तो प्रॉब्लम आएगा, आपको सब जगह वो चीज़ चाहिए होगी, अलग-अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और वो हो सकता है कि इंडिया में ज़्यादा यूज़र्स है, लॉगिन वगैरह मेरे को ज़्यादा इधर चाहिए, वहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर फीचर्स दूसरी जगह पे ज़्यादा चल रहा है। इन इन अ वे आपने सुना होगा डेटाबेस में टेबल को तोड़ते हैं ताकि अच्छे से मैनेज कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ही वो होता है कि आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आपकी या तो रेपो है या सर्विस है, आप उसको ब्रेक करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज़। और अगर अगर आप कोडिंग में या इसमें आते हो तो उसमें सिंपल उसको रिलेट कर सकते हो, नॉट एक्ज़ैक्टली सेम। मॉड्युलैरिटी जो बोलते हैं, इफ आई हैव अ बिग फंक्शन व्हिच इज़ वर्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं चाहूँगा कि एक छोटे-छोटे फंक्शन में डिवाइड करूँ जिसकी सिंगुलर क्या बोलते हैं बिहेवियर हो या उसके लिए काम हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, एक बड़ा सिस्टम है अगर आपने बना रखा है तो उसको थोड़ा-थोड़ा तोड़ के बनाओ। उसको डिफरेंट-डिफरेंट रखो, तो पता चला कि यार बहुत सारे लोग लॉगिन कर रहे हैं मेरी वेब जहाँ पे सेल चल रही है। तो एक पेज बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बाकी बहुत सारे फीचर भी अमेज़न पे, जैसे अमेज़न ही ले लेते हैं, बहुत सारे फीचर्स भी वो लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आया तो सर्वर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं क्यों परेशान हूँ कि मेरे पास 50 चीज़ें 50 के लिए सर्वर बढ़ाऊँ, कितना महँगा होगा, कितना ही मेंटेन करना मुश्किल होगा। मैं बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पेज चल रहा है या एक पर्टिकुलर मॉड्यूल चल रहा है, इसको अलग सर्विस बना दो, सिर्फ़ इसी को बढ़ाओ। छोटा डब्बा लगेगा, छोटा सर्वर लगेगा, जितने बढ़ाने बढ़ा लो, बाकी सब चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। बहुत वैसे देख सकते हो कि सब्ज़ी बनानी है या कुछ सैलेड बनाना है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, या हर बार आप 5 की 5 चीज़ें तो नहीं मँगाओगे ना, जो चाहिए वही मँगाओगे या वही बढ़ाओगे क्वांटिटी। आप अलग-अलग ऑर्डर करते हो, आप बास्केट हमेशा तो ऑर्डर नहीं करोगे, एक बास्केट है जिसमें आपका सारा सैलेड आता है।
फ्रेश। अब आपको कुकुम्बर और चाहिए, क्या आप बास्केट ऑर्डर करोगे जिसमें 5 चीज़ें आती है? नहीं ना, आप सिर्फ कुकुम्बर ऑर्डर करोगे। सो इट्स गोज़ लाइक दैट, सो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कि हमने चीज़ों को ना सिंपली तोड़ दिया है। अब ये तो हो गया नॉर्मल तुम्हारा सिस्टम। अब स्केल, स्केल विल ऑलवेज़ लाइक कि यार कितना ट्रैफिक आएगा? हाउ यू गोना मेंटेन दैट? इंडिया में देख लो, अगर कोई पॉपुलर साइट है या अमेज़न उठा लो, करोड़ों लोग एक्सेस करते हैं, कैसे मैनेज करोगे? दैट्स स्केल। सो इट्स नथिंग, ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है। हाँ, डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप सब चीज़ें एक साथ करते आए थे या नॉर्मली स्टार्ट करते तब एक साथ करते हैं सिम्प्लिसिटी के लिए। अब उस चीज़ों को ब्रेक करना है तो उसको कनेक्टेड कैसे रखोगे? कैसे चीज़ें चलाओगे? तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आती है। अगर मेरे को तुम्हें डेफ़िनेशन देनी है, लाइक इंटरव्यू डेफ़िनेशन आई कैन गिव यू, वो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। बट वो मैटर नहीं करता। उसके लिए अलग एल्गोरिथम्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो समझनी पड़ती है कि यार आप कैसे मेंटेन करोगे चीज़ों को। ये तो मैंने कोड के लिए बता दिया, सेम डेटाबेस के लिए चला जाएगा, उसमें भी अलग-अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। सो सिंपल वर्ड है, या चीज़ें छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिए और जो चाहिए, जितना चाहिए उसको उतना यूज़ कर रहे हैं, उतने सर्वर्स लगा के यूज़ कर रहे हैं। दैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और बहुत ज़्यादा लोग आपकी सर्विस को यूज़ करते हैं, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो वो स्केल बढ़ता जाता है। तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि जैसे-जैसे लोग बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपका सिस्टम डाउन नहीं हो, आप उसको चलाते रहो। अगेन ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, बट थिंक इट इन दैट वे, डिवाइड इट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, देन स्केल सिस्टम। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जब आप इन पॉइंट्स को कलेक्ट करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि चीज़ें वही होती है। तुम्हारे अगर इनिशियल लेवल पे जाओगे, कोड तो वैसा ही करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा वहाँ लिखना पड़ेगा, बस जगह चेंज हो जाएगी। बट मैनेज कैसे करना है, वहाँ पे लर्निंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पे फिर आप अगर लेवल पे जाते हो, आर्किटेक्चर लेवल पे जाते हो, डिज़ाइन लेवल पे जाते हो, तो वो फिर एक दूसरी दुनिया है, जो आपको सीखनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। बट बेसिक्स आर ऑलवेज़ द सेम फॉर एवरीथिंग, एंड दैट्स द बहुत अच्छी चीज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कि बेसिक्स हमेशा, चाहे आप एआई भी कर रहे हो, बेसिक्स कहीं नहीं जाने वाला है। वो हमेशा काम आए। Sir, that really means a lot. And I think that will help all the engineering students across multiple domains. I can give you my perspective on things, how I look into those things. If it helps someone, that would be great. Yes, sir. Thank you so much, sir, for that. सर, कोई आप अपनी लाइफ से एक फनी मोमेंट शेयर करना चाहो जिसको जिसने आपको आपके करियर में हेल्प करा हो, कुछ भी ऐसा जिससे आपने कुछ सीखा हो? Funny moment. I was actually talking to Natik on that yesterday only. It was not about career. It was about understanding how much confidence is necessary, even for getting job or doing something around that part. Like if you should have self confidence around that. Or I learned it in very funny way. Actually, I was giving one of the interviews. I already had some job offers in the end. उसकी एक अलग स्टोरी है। बट आई हैव सम कपल ऑफ जॉब ऑफर्स इन द एंड, एंड आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द इंटरव्यू फॉर दैट कंपनी। उस कंपनी के लिए मेरे को इंटरव्यू देने का मन नहीं था। बट कॉलेज इंसिस्टेड कि यार ऑफ कैंपस है, एंड वी शुड हैव नंबर्स अराउंड दैट, ताकि वो कंपनी कल ऑन कैंपस है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ऐसी कि यार इफ यू हैव ब्राइट स्टूडेंट्स और इफ यू हैव समवन हू हैज़ ऑलरेडी बीन ऑफर्ड, यूजुअली उनको नॉर्मल ऑन कैंपस में अलाउ नहीं करते कि आपके ऑलरेडी जॉब है। मतलब ना देखे तो बेटर है, दूसरे को चांस दीजिए, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। नहीं किया जाता, ये सजेस्ट किया जाता है। बट अगर ऑफ कैंपस जाते हैं तो वहाँ पे होता है ना कि इफ कंपनी सीज़ कि यार इस पर्टिकुलर कॉलेज से ज़्यादा ऑफर्स निकले हैं, तो अगली बार वो वहाँ जाएँगे ना। तो ऐसा एक सिचुएशन हुआ था, एंड आई वेंट व्हेन हमारे टाइम पे जो थे हमारे टीचर, दे सजेस्टेड दैट आई वाज़ लाइक ठीक है जाते हैं। तो मैं फ्री होके गया था। आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो जॉब है, मैंने जॉइन करना है, ये हो पास या ना हो। वो एक केयरलेसनेस थी बट एक कॉन्फिडेंस था। एंड हाउ द इंटरव्यू हेड एंड दे आस्क्ड मी क्वेश्चन, आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। आई सेड नो, आई डोंट नो अबाउट दिस। दे आस्क्ड अबाउट समथिंग ऑन एआई। हमारे में एक चैप्टर होता था एआई का, व्हिच यूजुअली पीपल स्किप, कि यार 10 चैप्टर में से 9 चैप्टर कर लो, 10वें की ज़रूरत नहीं है ना। अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसके और में एक और क्वेश्चन होगा। तो वो चैप्टर था एआई। आई स्किप दैट।
तो मुझसे पूछा गया एंड नो 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 से कि मैंने पढ़ा ही नहीं है सर। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट बी एरोगेंट, बट स्टेटिंग फैक्ट एंड आई वाज फर्म ऑन माय थिंग कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती तो नहीं आती सर, अगर आपको गेस करवाना है आई कैन गेस अराउंड थिंग्स, बट वो गेस होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस चीज़ पे। वहाँ से एक चीज़ सीखी एंड आई गॉट सेलेक्टेड अबाउट दैट बिकॉज़ ऑफ द कॉन्फिडेंस आई हैड एंड बिकॉज़ आई वाज़ क्लियर व्हाट आई वाज़ स्पीकिंग। मैंने जो चीज़ बताई वो क्लियर थी। मेरे को उस चीज़ पे डाउट नहीं था इंटरव्यू प्रोसेस में। जो आता है मैंने अच्छे से बताया, नहीं आता है, मैंने बोला कि नहीं आता, इफ यू वांट मी टू गेस आई कैन डू दैट। मैंने वो ऑप्शन उनको दिया। तो ये जो सिनेरियो था बहुत फ़नी सा था, बहुत सारी चीज़ें भी हुई उसमें, बट वहाँ पे ना जब मेरे को मिला ऑफ़र, तो मैंने वो चीज़ देखी कि कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। हाउ डू यू स्पीक? आप कितने क्लियर हो अपने अंडरस्टैंडिंग में? इट्स नॉट लाइक कि यार मैं जॉब लेने के लिए बहुत कुछ कर रहा था। हाँ, उसके पहले जो ऑफ़र लगे उसमें किया और लग कि बाय गॉड्स ग्रेस से यार भगवान की दया से लग गया, चलो हो गया। बट वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई। तो वो चीज़ मैं आज भी फ़ॉलो करता हूँ कि यार, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि इफ समवन इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग और जो चीज़ें, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पैनल में यार 4 पैनल बैठे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, एक पैनल है यार ये बड़ा खड़ूस है, सबको मना कर दे रहा है। इट डज़न्ट मैटर, क्या पता वो आपके लिए बेस्ट हो। डरने की ज़रूरत नहीं है यार, आपने अपनी प्रिपरेशन करी, गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव। कॉन्फिडेंस चाहिए आपकी बोलने में, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है या क्लैरिटी लाने में। अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अ, वो आपके 3rd या 4th ईयर में आप अगर होंगे, तो दे दोज़ पीपल नो एक्चुअली, उनकी अलग से क्लासेस होती है सॉफ्ट स्किल्स की, एप्टी की, सॉफ्ट स्किल की स्पेसिफिकली, टू हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट, आप कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत सिंपल चीज़ है कि आप कैसे बात कर लेते हो। बट ये इम्पैक्ट डालती है आप किसी से बात करते हो स्पेसिफिकली इंटरव्यूज़ में। तो दैट इज़ वन ऑफ द फनी मोमेंट एक्चुअली आई लर्न्ड फ्रॉम दैट दैट कॉन्फिडेंस इज़ इम्पोर्टेंट। वो भी जॉब लगने के बाद, अगर ये चीज़ पहले होती थी शायद मुझे पहले में 4-5 महीने तक कुछ मिला नहीं था मुझे एंड आई वुड हैव बीन क्रैक समथिंग आउट अर्लियर, अगर ये पता होता तो। पर ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, एक लर्निंग है। सो या दैट वाज़ वेरी फनी दैट मैं बाहर आके बोला था कि यार ये पागल बंदा होगा अगर इसने मेरे को हायर कर लिया तो, क्योंकि मैं सिर्फ वो मूव है। अगेन बीइंग क्लियर एंड बीइंग यू नो एक ऑनेस्टी, एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप दंडता कर रहे हो वहाँ जाके कि भाई मैं तो फोड़ के आऊँगा, मैं कुछ भी बोल दूँ, नहीं। डोंट गो बाय दैट। बट हाँ, क्लैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज़ इम्पोर्टेंट वेरी मच। यू शुड बी अवेयर कि क्या आपको पता है, क्या आपको नहीं पता है। वो सर दैट इज रियली गुड। सर आपने एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया है 4 मेजर फर्म्स में, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, 1 MG एंड आई थिंक पेटीएम। हुँ, सर मेनली माइक्रोसॉफ्ट और मेटा एज अ ड्रीम कंपनी होती है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कुछ बात बता सको या कोई किन टॉपिक्स पे एज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए टू सिक्योर अ प्लेसमेंट और गेट प्लेस्ड इन सच रिलायबल कंपनीज? सी देखो प्लेसमेंट या वहाँ पे अप्रोच लेना, लाइक गो, यू इफ यू कम इनटू दोज़ पीपल्स आई इज़ अ डिफरेंट गेम एंड हाउ, और उसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेफिनिटली। और दूसरी चीज़ आती है आपका स्किल सेट एंड ऑल दोज़ पार्ट्स। सो definitely go about, see every company have different criteria. If you talk about TCS, they have different criteria. If you go for startups, startups have more process of joining. वो बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं, which is sometimes good for you to understand कैसे चीज़ें चल रही है, कहाँ तुम improve कर सकते हो। If you talk about Google, Google is very particular about specific coding standards and आप कैसी चीज़ें कर रहे हो। और अगेन रोल बाय रोल डिपेंड करता है कि आप, अगर आप बहुत अच्छे स्किल्ड हो और वो कंपनी पे यार फ्रेशर्स के लिए या अर्ली के लिए अभी वो वैकेंसी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग अराउंड दैट। सो ऑल आई से दैट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, कीप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स, मेक श्योर योर कोडिंग इज गुड। और इट्स नॉट लाइक यार मेरी कोडिंग अच्छी नहीं है, मैं कर नहीं सकता। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु सेड यार कोडिंग समझ में नहीं आती। आप ट्राई करो, चीज़ें कोशिश करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर वो आती है, वो बहुत मेजर स्किल है
वहाँ पर तक जाने के लिए। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल पोजीशंस, कोडिंग इज़ द मेन गेटवे कि आप कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे करते हैं या कैसे चलती है। सेकंड पॉइंट रेफरल्स ऑफ कोर्स, इफ यू हैव समवन ओवर देयर, आस्क देम फॉर रेफरल्स बिकॉज़ दैट इज़ अ डायरेक्ट वे टू गो इंटो द कंपनी बिकॉज़ अगर एक एम्प्लॉयी अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास एक रेफरल है, तो कंपनी को पता है कि यार देयर इज़ समवन हू इज़ ऑलरेडी वर्किंग विथ अस इज़ ब्रिंगिंग समवन टू अस, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो 90 80-90% वो एटलीस्ट प्रोसेस करेंगे आपकी उसको बिकॉज़ दोज़ कंपनीज़ गेट थाउज़ेंड्स ऑफ रिज्यूमेस एवरी डे। आप या रिक्रूटर्स के पास या फ़ोन या मेल्स जाते हैं, उससे डरने की बात नहीं है। तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ है, आप वैसे करो और आजकल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाटएवर रिज्यूमेस आर क्रिएटिंग, इट शुड बी समथिंग वो तो प्लेटफ़ॉर्म में भी था कि आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आप कॉलेज में हो डज़न्ट मैटर, यू शुड हैव 2 टू 3 प्रोजेक्ट्स अंडर योर नेम कि आपने वो किया है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, श्योर दैट यू आर रेडी, जंप इन। क्योंकि आप वहाँ जाओगे कंपनीज़ आपको सिखाएगी सब कुछ कि हमारे यहाँ कैसे काम होता है वो तो है। आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मैंने हाथ पैर मार रखी है, चीज़ें बना रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ये सब बीच में वो चीज़ें भी हो रही है, आपका रिज़्यूमे जो है ये कि आज के टाइम में आपका रिज़्यूमे एआई समझ सके, फ़िल्टर कर सके और पूरा प्रोसेस करके स्कोर कर सके। कोई भी एआई चेक पे जाओ, रिज़्यूमे डालो और बोलो कि स्कोर माय रिज़्यूमे, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट? लैंग्वेज आप अपनी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि उसमें वर्ड्स क्या लिखने हैं। स्कोरिंग मीन्स एआई क्योंकि आजकल रिज़्यूमे पहले मैनुअली हम देखते थे, स्टार्टिंग में यार मेरे पास 15 रेफरल्स है, 20 रेफरल्स है, मेरे पास पूरा रिज़्यूमे है। हम देखते थे कि यार ये पर्सन ठीक है, ये पर्सन ठीक नहीं है, इसके पास क्वालिफ़िकेशंस है। यूजुअली ऐसे होता था या फिर किसी ने पास कर लिया तो भी मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए था, आजकल नहीं चाहिए होता। योर रिज़्यूमे शुड बी एक्यूरेटली ट्रेस्ड बाय एआई कि एआई उस रिज़्यूमे को पढ़ के उसका सेंस बना सक रहा है और वो सेंस वही है जो आप लिखना चाहते हो या दिखाना चाहते हो सामने वाले को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम किसी भी फॉर्मेट में बहुत फैंसी सा रिज़्यूमे बना दो, डज़ नॉट मैटर, इट जस्ट वर्ड्स। की चीज़ क्या है, मेन चीज़ें क्या करी है, टेक्निकल ओरिएंटेड क्या-क्या है आपके पास और आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या-क्या है, आप कुछ अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं। स्टार्टिंग लाइक एज़ अ स्टूडेंट, वो बहुत ज़रूरी है। लाल पीले कर लो आप उसको बहुत डायनामिक इफ यू आर अंडर सम डिजाइनर और समथिंग डेफिनेटली उसको फैंसी बनाओ। इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली वो जाना है, स्कैन होना है और एआई ने उसमें डेटा रीड करना है और उसने उसे सीधा-सीधा बताना है कि यार जो हमें 4 चीज़ें चाहिए उसमें से इस बंदे के पास 3 या 4 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में। मैं अभी भी जैसे हम करते रहते हैं जॉब अप्लाई वगैरह तो हमें वो चीज़ अ, देखते हैं ना कैसे फ़िल्टर आउट होती है चीज़ें। सो दैट मैटर्स द मोस्ट। आज के टाइम में इफ यू आर से गिविंग योर रिज्यूमे और दूसरा अगर तुम्हारे पास टाइम हो तुम कर सको तो रिज्यूमे को जॉब प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा-सा ट्रिक करो। अगर मेरे को बोलोगे आप मेरा रिज्यूमे देखोगे दे हैव इट हैज़ लाइक 5 की थिंग्स अराउंड दैट जैसे आपने बोला मेरे को मे बी यू गेट इट फ्रॉम लिंक्डइन राइट? कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, ऑथ है या प्राइवेसी है। दीज़ आर माय की प्रोजेक्ट्स उनका मेन एसेंस ये था। उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें में काम किया है। आई वुड से क्लाउड है या बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं डाल रखा उसमें। इफ अ कंपनी कम्स and which specifically have a requirement of cloud or something and if I worked around that तो मैं उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करूँगा रिज्यूमे में। तो रिज्यूमे आपकी कंपनी की बेसिस पे बनता है हमेशा। इट्स नॉट लाइक एक जेनेरिक रिज्यूमे बना दिया है। वो रिक्रूटर को देना है दे दो। बट अगर आप कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप फॉर्मुलेट करो रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। योर चांसेस विल बी मच मोर बिकॉज़ एआई बोलता है 5 चीज़ चाहिए, अरे यार 4 चीज़ मिल रही है। इट्स अ गुड मैच। तो फिर वो एक पर्सन के हाथ में जाता है, तो 100 में से 80 रिज़्यूमेस तो आपका ऐसे ही काट लेता है एआई और वो 20 जाएँगे हाथ में, तो एटलीस्ट वो अपॉर्च्युनिटी तो आपके पास है, राइट? सो ये लास्ट की 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिज़्यूमे एआई अच्छे से पढ़ सके और मेक सेंस ऑफ इट, जो आप चाहते हो सेंस बना सके। आपके पास रिज़्यूमेस है, डालो किसी भी चैटबॉट पे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल में भी डाल दो। उसको बोलो कि इसको स्कोर करो, प्रोसेस करो, बताओ क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और ये एआई रीडेबल है या नहीं प्रॉपर्ली। या आई मीन दीज़ आर द की पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखो। बाकी उन कंपनीज़ में अगर आपका काम अच्छा है तो समवन विल नोटिस यू ईदर ऑन लिंक्डइन और एनी प्लेटफॉर्म। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, गो टू देयर जॉब पोर्टल और बेस्ट केस इज़ रेफरेंस। इफ यू हैव समवन ऑलरेडी देयर, एनी सीनियर और एनीवन, आस्क देम टू रेफर यू। यही चीज़ें होती है सर। Sir, I was about to ask this resume question, which you already answered in a very detailed format.
थैंक यू फॉर दैट। ये बहुत क्रूशियल है सर, एक्चुअली आज के टाइम में। आपने बहुत कुछ कर रखा है अगर आपका रिज्यूमे specifically tools, ACM tool, what does it say? ATS, not exactly know the name. वो tools होते हैं, they are not able to, find that particular thing from there. वो problematic situation है. आजकल AI बहुत improve हो रहा है, वो कर लेगा somehow, but make sure keep it simple around that. yes, sir. Sir, could you recommend any three technologies or domains which a person should focus, mainly an engineering student in this age, modern age? See, I can give you 3, I can give you 5. वो मेरा perspective होगा. Mhm. I would say, like किस point of view से तुम बोलना चाहते हो? There are मेनी डोमेन्स अराउंड इट। बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जो एक्सप्लोर अभी नहीं हुई। जैसे हमारे टाइम में एआई नया-नया आया था। इट वाज़ नॉट एक्सप्लोर्ड एट दैट मोमेंट एंड हमने एआई एमएल नहीं करे थे। उस टाइम पे एमएल ज़्यादा चलता था, राइट? तो आप अगर मार्केट डिमांड की बात करो तो या आई वुड डेफिनिटली से एआई, डेटा साइंस, एमएल, ये चीज़ें बहुत अभी है। इफ यू हैव दैट दैट्स वेरी गुड फॉर यू टू किक स्टार्ट इन द लेटेस्ट बूम। क्योंकि एआई इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। सिक्योरिटी इंजीनियर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर अभी कोर्सेज़ एआई नहीं, बिकॉज़ हमारे टाइम में जो कोर्स होते थे, अभी कोर्सेज़ काफ़ी डिफरेंट। आई गेस यू हैव एआई एंड डेटा साइंस सेपरेट स्ट्रीम एज़ वेल, राइट? हमारे टाइम में सीएसआईटी होता था। देन ईसीई एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक में तुम ऑलरेडी हो दैट्स ग्रेट, नहीं हो डज़ नॉट मैटर। क्योंकि यार पॉइंट ये है कि अगर इफ यू आर गुड एट समथिंग ना, उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होगी, जो मेरे को लगता है, अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा नहीं है कि यार एआई मेरे को नहीं, मैं एआई के फील्ड में या स्ट्रीम में नहीं हूँ, तो यार मेरा तो लाइफ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सी मैं एआई की फील्ड में नहीं हूँ, आई एम वर्किंग वो चीज़ में है। हाँ, डेफिनिटली लर्न अबाउट थिंग्स आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा कि हाँ, एआई यूज़ कैसे करते हैं, मुझे आना चाहिए। एलएलएम नहीं आता, नहीं आता। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आई लर्न इट अराउंड दैट। So initial thing is whatever you're doing, do better as a college pass out or as a college student आप 3rd 4th ईयर में आते हैं। मेक श्योर जो भी स्ट्रीम में आप हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, डज़ नॉट मैटर, और ऑटोमोबाइल हो। आप अपनी कोर स्किल्स पहचानो कि यार आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उस चीज़ में आप एक्सीलेंस लो, अच्छे से लो। जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे आगे जॉब में और उसमें आपको फ़ायदा होगा। वो बात अलग है, सीएस में ज़्यादा जॉब्स होती हैं, आईटी में ज़्यादा जॉब्स होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ों में नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट। आपको सिर्फ़ अर्न करने के लिए जॉब करने के लिए जॉब चाहिए। अगेन सबका अपना-अपना पर्सनल चीज़ होता है, या एक फ्लो होता है कि यार ये नहीं मिली तो मेरे को बैकअप प्लान में जाना है, कुछ भी करना है। इट्स एवरीवन्स चॉइस। बट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्किल सेट अपना सीधा करो। स्किल सेट अच्छे से रखो। इफ यू वांट टू गो विथ कोडिंग, मेक श्योर यू यू आर पैशनेट अबाउट दैट। बिकॉज़ कोडिंग में भी आप बोलोगे बहुत सारे लोग निकलते हैं, हर साल बहुत सारे कोडर्स हैं। इवन दूसरी स्ट्रीम वाले भी सीएस की जॉब्स में आते हैं। बट आपको जाना है उस भीड़ में, आपको अलग से निकलना है, वो आपका स्किल सेट डिफाइन करेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी लैंग्वेज की बात करो तो मैं बोलूँगा यार एआई, एमएल, पाइथन पे जाओ, इट्स मच बेटर। सी प्लस प्लस तो पुरानी, किसने बोला? सी प्लस प्लस और सी की इतनी डिमांड है, इफ यू आर गुड एट दैट, व्हिच आई एम नॉट, मेरे को कुछ बोलने का नहीं है, अगर मौका पड़ेगा कि टाइम मिलेगा तो लर्न करेंगे। इफ यू आर गुड एट दैट, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज़ वो बेस है, सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। राइट? तो वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आप जावा कर रहे हो तो यार जावा तो पुरानी लैंग्वेज है, नहीं, आज भी 60 टू 80% कंपनीज़ वो यूज़ करती है, डिमांड है उसकी। पाइथन की डिमांड तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉट नेट की डिमांड है, सी शार्प की भी डिमांड है, पीएचपी बेकार है। आप मेटा उठा लीजिए, इट वर्क्स ऑन हैकलैंग व्हिच इज़ बेसिकली रिटन ओवर पीएचपी। सो अगेन जो करना है दिल से करो, डिटेल में करो, अपनी नीश बनाओ, अपना कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, इस चीज़ को करना है। अगर वो चीज़ कर पाते हो, ये तो मैं स्पेसिफिकली पूछ रहे थे, तो यार अगर तुम्हें ना नेम ही करना है तो आई वुड से यस, गो विथ एआई, एमएल, गो विथ डेटा सिक्योरिटी, गो विथ डेटा साइंस। दीज़ आर द की थिंग्स जो अभी बहुत डिमांड में है। जितना एआई आएगा उतना सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना एआई है सिक्योरिटी, एवरीथिंग रन्स ऑन डेटा। सो वो चीज़ें कभी खत्म नहीं होने वाली है। इट्स नेवर गोना एंड। एआई का मुझे पता नहीं, बट डेटा और सिक्योरिटी तो ऐसी चीज़ है कि वो सदाबहार।
you are already in those things. That is nice, sir. Sir, what is the importance of open source contributions and internships for an engineering students at today, which you can see? Open source contribution and the internship. Yeah, I would say these are very, very important. आपने कहीं देखा भी होगा कि कई जगह डिमांड भी होती है कि आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो दैट्स नाइस टू हैव, इट्स नॉट अ रिक्वायर्ड डिमांड ऑलवेज, बट इंटर्न्स ऐसी चीजें जो मैंने स्टार्ट बताया था, वॉट एवर यू आर लर्निंग इन कॉलेज इट्स जस्ट फॉर गेटिंग सेट समवेयर, राइट? कि आपको सेलेक्ट होना है, कोडिंग एग्जाम पास करना है, आप कोडिंग सीख रहे हो, आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करना है, उसके लिए वो ज़रूरी है। बट जैसे आपने काम किया है, आप फर्स्ट डे ऑफिस या कहीं एंटरप्राइज़ या उस पे जाओगे, थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। आपने पाइथन सीख रखी है, वहाँ पे जाके आपसे पाइथन काम करें, दे विल गिव यू ट्रेनिंग अराउंड दैट कि कैसे काम होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। आप सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, वाटरफॉल, अजाइल एंड ऑल दोज़ थिंग्स। आगे नहीं पढ़ा होगा तो आएगा आगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो। वो सारी चीज़ें मिक्स वे में इम्प्लीमेंट होती है बहुत जगह, मोस्टली जगह पे। कोई एक सिस्टमैटिक फ्लो लेके नहीं चलता है आजकल। सब कुछ का एक अलग से हाइब्रिड वर्ज़न होता है। कैसे क्या नहीं किया जाता है, कैसे चीज़ें जाती है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कैसे रिक्वायरमेंट दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल है, बट ऑल एवरीथिंग इज़ नॉट कोडिंग। कोडिंग एक छोटा-सा पार्ट होता है। तो बेसिकली इंटर्नशिप में आप जब जाते हो एंड यू आर वर्किंग विद ऑलरेडी प्रोफेशनल्स या जो इस एक्सपीरियंस में किसी कंपनी के लिए किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कंपनी में, वो तुम्हें वो एक्सपीरियंस देता है। वो तुम्हें एक, मैं नहीं बोलूँगा शॉक अब्ज़ॉर्बर है, बट वो तुम्हें एक एक पाथ देता है कि चीज़ें ऐसे चलती है। सो व्हेनेवर यू जॉइन अ कंपनी यू विल बी मोर कंफर्टेबल, यू नो एग्ज़ैक्टली व्हाट टू डू। इंटर्नशिप में आजकल तो इंटर्नशिप्स में भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के पार्ट्स इंटर्न्स कर रहे होते हैं, एंड व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि यार अगर आप किसी बड़ी कंपनी में या किसी जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, यू आर वर्किंग ऑन स्केल, आप डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हो बट सम वे पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ में। लाइक आप एक लाइन का कोड भी लिख रहे हो तो वो एक स्केल सिस्टम में जा रहा है, वो कैसे चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिव्यूज़ क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑफिस हैज़ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो आप करते हो डेली लाइफ में, आपको पता भी नहीं होता। अगर आप लिखने बैठोगे तो अरे यार इतनी सारी चीज़ें करते हैं हम। तो एक सिनेरियो होता है। इंटर्नशिप वो एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है कि यार रियल लाइफ में जब आप एज़ अ प्रोफेशनल आप काम करोगे या आप किसी कंपनी को जॉइन करोगे, वहाँ पे क्या चीज़ें होती है। तो कई बार होता है ना कि जैसे हमने बहुत कुछ किया और हम गए, आपने मैथ में बहुत कुछ पढ़ा होगा कि यार हमने इंटीग्रेशन, फलाना ढिमकाना वो सब किया है, राइट? फिज़िक्स में, मैथ में, यार कहाँ काम आ रहा है? आप बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहे होगे, जावा सर्टिफ़िकेशन करोगे, आप शिफ्ट वगैरह आप करोगे, क्या बोलते हैं, स्विंग्स वगैरह करोगे, कहाँ काम आ रहा है? ज़रूरी नहीं वो काम आए। अभी की नॉलेज आपका बेस बनाने का है कि आगे इसके ऊपर कुछ भी रखा जाए तो आप उस बेस को यूज़ करके चीज़ें कर सको, और वो एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप देती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपके कॉलेज से हो रहा है, करो, नहीं हो रहा है, कनेक्ट करो। कई बार होता है कोई स्टिपेंड देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, बट यू एज़ अ फ्रेशर, एज़ अ स्टार्टिंग, दिस इज़ समथिंग यू शुड डू। आपको पता चलेगा टीम में कैसे काम किया जाता है। आप अकेले काम करते हो, आप टीम में कैसे काम करोगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। इट्स नॉट लाइक आगे जाके आपको अकेले करना है। करना होगा ठीक है, दैट वुड बी डिफरेंट पॉइंट, बट समवेयर कहीं न कहीं जाके आपको टीम के साथ काम करना होगा, चीज़ें मैनेज करनी होगी, कैसे चीज़ें चलती है। सो या इंटर्नशिप इज़ मैं तो मैं तो बोलूँगा कि ये कंपल्सरी होता है आई गेस, या करना भी चाहिए। वन वे और अनदर कॉलेज करवाता है या आपके खुद के कोई रेफरेंसेस हैं, कोई ऑलरेडी हैं तो आस्क देम, क्योंकि कंपनीज़ हायर करती हैं इंटर्न्स। कंपनीज़ को भी अच्छा रहता है। इन बहुत वे में। और दूसरा तुम्हारा पॉइंट क्या था? एक तो इंटर्नशिप था और एक और क्या पूछा था आपने? Open source contribution, sir. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, यार दिस इज़ समथिंग आई वोंट से यार गो फॉर दैट थिंग। इफ यू गो दैट्स रियली गुड एक्चुअली। इट्स गिव यू, इट इज़ समथिंग that can useful for many people are making an impact. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज समथिंग, आपने कुछ किया है, क्रिएटिंग ओपन सोर्स लाइब्रेरी आपने कंट्रीब्यूट किया, उसने उसको एनहांस किया है। बहुत ईज़ी नहीं होता है कि आप जाके यार चलो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, नहीं। यू और वहाँ पे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो प्रॉपरली रिव्यूज़ होते हैं वहाँ पे।
जो भी ओनर होते हैं, फिर वो लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी है एंड समथिंग न्यू। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक्चुअली शोज दैट यू हैव अ माइंडसेट, यू थिंक रियली वेल इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ कि आप एक कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हो, या कुछ आपका माइंडसेट है कि आप इस चीज़ को कुछ प्रॉब्लम है और ऑलरेडी उसको फिक्स कर रहे हो। आप कोई ओपन सोर्स टूल यूज़ करते हो, कोई फ्री टूल यूज़ करते हो, जो ओपन सोर्स है। आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आप उसको इम्प्रूव करते हो। सो वो एक आपका ना माइंडसेट दिखाता है, वो आपके स्किल दिखाता है बेसिकली कि आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, इफ इट इज़ अप्रूव्ड एंड इट इज़ देयर, मतलब आप में वो कैलिबर है, राइट? टू मैच विथ इवन नॉर्मल और सीनियर गाइज अराउंड दैट कि यार ये बहुत सारे लोग हैं, आपने इस चीज़ को फिक्स किया, यू हैव फाइंड द प्रॉब्लम्स, यू हैव फाइंड थिंग्स। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये स्किल सेट्स है। तो एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन गिव्स यू ऑल दोज़ थिंग्स कि यार आपने बहुत सारी चीज़ें करी है। इवन ओपन सोर्स नहीं बोलूँगा, अगर आपने किसी प्राइवेट लाइब्रेरी है उसको मॉडिफाई करके कुछ आपने किया है, एंड इफ यू आर अप्रोचिंग देम एंड दे आर एक्सेप्टिंग योर पार्ट, अगेन वो सबके लिए काम नहीं आ रहा, बट आपने वो चीज़ की है, यू हैव दैट थिंग, राइट? वो एक आपका स्किल सेट है कि आप चीज़ें खुद से देख के यूज़ करके उसमें प्रॉब्लम्स निकाल के उसको फिक्स कर सकते हो, या उसको कुछ एनहांस कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग रियली गुड। या फिर एंटायरली कुछ नया चीज़ बना के आपने सबको यूज़ करने के लिए दे दिया फ्री में कि आप जाओ, यूज़ करो। वो कम्युनिटी के लिए काम होता है। तो वो प्रेस्टीजियस बोलते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़, वो सीधा आँखों में लगती है। एज़ अ रिक्रूटर बोलो या एज़ अ कंपनी बोलो या एज़ अ अदर पर्सन बोलो, अगर किसी ने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली, कमेंडेबल थिंग्स, इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड्स आई वुड से, मेरे पर्सपेक्टिव में अगेन। बट हाँ, मेक श्योर कि आप सिर्फ़ उसी चीज़ के लिए मेरे को ओपन सोर्स करना है, बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। राइट? ये हो जाएगा तो सब ठीक है। बट हाँ, अगर आप कर पाते हो तो अच्छी चीज़ है वो। दैट्स समथिंग यू शुड डू। मैंने भी एक बार कभी किया था, इवन इन 4th 5th ईयर ऑफ माय करियर, तब जाके, क्योंकि वो मेरा काम था और उस प्रोजेक्ट पे मेरे को कुछ अपडेट करना था, एंड आई नीडेड समथिंग टू अपडेट ऑन दैट पाइथन लाइब्रेरी। वो पाइथन की लाइब्रेरी यूजुअली ओपन ही होती है। तो उसमें एक छोटा-सा ट्रिक था, वो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया था। मेरे साथ 2 बंदे और थे, हमने डिस्कस किया, उसको किया हो गया। एज़ अ कंपनी नेम हमने ओपन सोर्स किया था। तो अगेन इट्स अ गुड फीलिंग, पर उसके अलावा मैं कभी कर नहीं पाया। इतना टाइम भी नहीं मिला और इतना डीप गए नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रैंकली। तो या बोथ आर इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो ओपन सोर्स आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। इफ यू आर स्किल्ड एंड यू वांट टू गो दैट पाथ, यस, यू शुड डू इन दैट केस। बादल में So one must do open source contribution, but not on the cost of academics. one should do, I won't say must, must is a very strong word. One can do open source contribution, अगर आपका माइंडसेट आप में वो है कि यार नहीं करना है, करो। बट मेक श्योर कि आपकी जो बाकी चीज़ें चल रही है वो भी एक पेस पे चलती रहे, वो मेंटेन करना ज़रूरी है। यार ओपन सोर्स कर लोगे, आपके परसेंटेजेस ही नहीं बन रहे हैं, जो आप फ़िल्टर ही नहीं कर पा रहे हो आपके आपकी टेस्ट में या किसी कंपनी के लिए, या आप इसके पीछे पड़ रहे हो, तो बाकी की कोडिंग आप या जो सिस्टम डिज़ाइन या जो बाकी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थिंग्स आपको सीखनी है, आप वो सीख नहीं पा रहे हो, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता ना। कहीं न कहीं चीज़ें वो हो जाएगी। उसको नॉर्मल रखो, मैंने बोला कि सब में एक्सेल करो, और आपको चीज़ करनी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू हैव स्किल्स, गो अहेड। इट्स समथिंग लाइक आइडिया ना, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, यार ये इसलिए सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा अपडेट करके देखते हैं, इसको अच्छा करता है। यही होता है अल्टीमेटली। फिर एक और पॉपुलर टर्म है स्टूडेंट्स के बीच में, हैकाथॉन्स। और ये बोला जाता है कि हैकाथॉन्स में पार्ट लेना एक मस्ट टू डू टास्क है एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सर, आप इसे कितना सही मानते हैं? हैकाथॉन्स एक टेक टेक के स्टूडेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? यार मैं बोलूँगा ओपन सोर्स इज़ अ प्रीमियम वे ऑफ हैकाथॉन ओनली। अगेन पर्सपेक्टिव है। हैकाथॉन आपको दिखाता है, यूजुअली हैकाथॉन अगर आप टीम के साथ कर रहे हो तो दिखाता है कि हाउ कैन यू कम अप विद एन आइडिया व्हिच कैन इंप्रूव समथिंग। आप कुछ फ्रेश बनाओ या किसी चीज़ को फिक्स करो, आप किसी एग्जिस्टिंग हैकाथॉन आपका कॉलेज है, अगर आप कॉलेज की साइट पे कुछ फिक्स कर दो या आप कोई ऐप बना दो। तो बेसिकली वो एक माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लाता है। आप एक छोटे लेवल पे आपका स्किल सेट बनाता है कि आप टीम्स में कैसे डिवाइड करो। तो अल्टीमेटली ना ये चीज़ें मैच करवाती है। आप अगर देखोगे तो ब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी हैकाथॉन होते हैं। एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स हैकाथॉन्स होते हैं। यू हैव टू फॉर्म अ टीम, यू हैव टू प्रोवाइड पिच अ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट पिच करो, हम ये बनाएँगे।
आप नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें टूल करो, आपको 3 दिन मिलते हैं, दिन-रात बैठो ऑफ़िस में। कई बार ऐसा होता है, कई बार इधर-उधर जाके करो, आपकी चॉइस पे है। तो वो एक रिग्रेशन दिखाता है, कमिटमेंट दिखाता है। अल्टीमेटली आप टीम में कैसे वर्क करते हो, कैसे आप फ़ास्ट पेस चीज़ें बना सकते हो, कैसा आपका थॉट प्रोसेस चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इट्स लाइक एन सुपरसेट एक्सरसाइज़। अगर आप जिम करते हो, आपने आज चेस्ट किया, लेग किया, ये किया, वो किया। एक दिन आपको बोले कि अच्छा आपने सब कर लिया, चलो फटाफट से सब चीज़ों को साथ में लाते हैं। एक सेट बनाओ जिसमें 2 चेस्ट करो, 2 लेग करो, ये करो, वो करो। 5 मिनट 2 मिनट का गैप, ऐसे 3 सेट करो। इट्स लाइक मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग। तो आप एक तरह से रियल वर्ल्ड सिनेरियो, रियल वर्ल्ड प्रोफेशनलिज़्म को भी एक्सपीरियंस करते हो। आप वो प्रेशर भी देखते हो कि यार हमारे पास टाइम कम है, उस टाइमलाइन में काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। Hackathon is only gonna improve your team skill it's gonna improve your team skills अगर आप किसी चीज़ पे फ़ोकस करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यू आर ऑलरेडी फ़ोकस्ड अराउंड दैट कि यार जैसे मैंने फेक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हैं बहुत सारे और अर्ली में करते थे तो हम ऑफ़िस में ही रुकते थे। ऑफ़िस वाले की बात कर रहा हूँ कि हम रात-रात भर वहीं बैठे रहते थे, वहीं सो जाते थे, वहीं उठते थे। 4-5 जनों की टीम है, सब ऐसे करते थे या बीच में एक बंदा जाके आ गया, वो हो गया। ग्राइंडिंग करते थे कि इसको ऐसा बनाते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, तो आपका दिमाग काम करता है उस तरह से। आप एक्चुअली एक रियल सिस्टम के अंदर घुसे होते हो, आप खुद से बना रहे हो। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको सिखाती है कि यार बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम करती है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चीज़ चलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ हैकाथॉन, इट्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग। कई बार नहीं बनता है, बट कई बार अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो आपकी टीम में साथ में होते हैं। आप आपकी टीम के साथ या आपके साथ में जो टीम होती है उसके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है। यू अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा इस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा है। हाउ कैन वी फॉर्म अ टीम लाइक दैट? आगे जाके बनानी होगी तो हम कैसे बनाएँगे? यू नो योर स्किल सेट कि यार मैं 50 चीज़ें सोचता हूँ बट मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। क्योंकि मेरे साथ 4 लोग बैठे हैं, ये फ्रंट एंड में अच्छा है, बैक एंड में अच्छा है, ये लेट्स से ऑथ में अच्छा है, ये इसमें अच्छा है। मैं यूआई में अच्छा हूँ। आई कैन डू दैट राइट? ये चीज़ें ना ये बहुत सिंपल लगती है यार हम चलो आ जाओ ग्रुप बनाते हैं, खेलते हैं या हैकेथॉन करते हैं। बट अगर आप बड़ी चीज़ जगह पे जाओ तो दिस इज़ समथिंग एक्चुअली हैपेंस इन अ वेरी बिग स्केल इन कंपनीज़। एज़ अ मैनेजर अगर मैं बैठा हूँ, मेरे पास 4 बंदे हैं, अगर मैं हैकेथॉन को मेरी टीम को लीड कर रहा हूँ, तो मैं एक तरह से लीडर का काम कर रहा हूँ, मैनेजर का काम कर रहा हूँ वहाँ पे, कि मैं भी काम करूँगा, मैं इस बंदे को ये पार्ट में डिवाइड करूँगा, हम कैसे काम करेंगे, कैसे बड़े प्रॉब्लम को ऐसे बोलूँगा कि यार मेरे को एक वेबसाइट बनानी सीधी बन जाएगी क्या? एक-एक चीज़ डिफाइन करोगे, तो सब आपके ऊपर होता है कि आप कैसे करना चाहते हो, आप कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो। वहाँ बहुत लर्निंग होती है। तो इसी ये जो भी चीज़ें हैं, इफ यू गेट अ चांस, यू शुड डू इट। अगर चांस मिलता है या आपके पास ऑप्शन है तो मैं तो बोलूँगा ऑप्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस यू हैव समथिंग मोर प्रेसिंग विथ यू। 3 दिन 2 दिन कॉलेज या क्लासेस नहीं होगी तो एटलीस्ट ये भी क्लासेस ही है एक तरह से आपकी सेल्फ क्लासेस है, तो आप कर सकते हो। वी हैव डन अ लॉट ऑफ फ्रेंडली हैकेथॉन्स इन आवर हॉस्टल्स इन आर्या, आई वुड से यस सर। व्हेन वी यूज्ड टू मेक थिंग्स, मज़ा आता था कि आज बैठ के ये यस कहते सर। हैं, ये गेम बनाते आता है, कोई खरीदने वाला नहीं, पता है, बनाते हैं ना, सीखेंगे कैसे? तो वो एक बहुत वर्ड है अच्छा वर्ड इंटेलेक्चुअल होती है यार। या हाँ, ट्रेनिंग में होता है कि यार करके देखते ना करना है। इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट डेफिनिटली गो अहेड विद दैट। सर दैट इज़ रियली गुड फ्रॉम योर साइड। ये कोशिश से अच्छी मुझे नहीं लगता हो सकती है एक्सप्लेनेशन। नहीं कौन से ईयर में हो तुम यार द क्वेश्चंस यू हैव यू आर वेरी क्यूरियस आई आई लाइक दैट पार्ट लाइक यू आर आस्किंग अबाउट हैकेथॉन्स यू आर आस्किंग अबाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। भाई हमें नहीं पता हम 4th ईयर में थे तब भी क्या ये और आई विश अगर पता होता तो वी वुड बी मच मच बेटर इन दैट केस जो चीज़ें बीच में हुई बट ठीक है अपनी जर्नी है एंड दिस इज़ वेरी गुड यार नाउअडेज़ आई कैन सी दैट एवरीवन इज़ मच मोर अवेयर अबाउट थिंग्स अराउंड और क्या होता है यूजुअली। So this is very good of you to know all those things and I was not expecting this question actually कि यार ठीक है ये चीज़ें जनरली आती है आगे जाके तुम्हें पता चल जाएगी। गुड दैट यू आस्क। सर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है मार्केट में। हैकाथॉन्स फर्स्ट ईयर से ही करने शुरू कर देते हैं बच्चे। वो आदत डाली जाती है ना। अ, यस। अच्छी चीज़ है आजकल देखो 3 साल के बच्चे क्रिकेट बैट लेके
अच्छे से ग्लांस करते हैं जो आप मैं आज तक नहीं कर पाता तो वो उतना प्यारा ग्लांस कर लेते हैं बच्चे, इतना छोटू-सा बेड लेके। तो वो ये है कि आपको पहले से उस चीज़ में डाला जा रहा है कि आप देखें, आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा इन चीज़ों का हैकेथॉन्स का डायरेक्टली एज़ सच। यार हैकेथॉन पे क्या सीख लिया? प्रोजेक्ट बनाया पूरा नहीं हुआ, प्राइज़ भी नहीं मिला। हुँ, हुँ। बात उसमें है ही नहीं ना। बात क्या बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि बात उसकी मंज़िल में नहीं है, बात उस सफ़र में कि तुम हैकेथॉन कर रहे हो, दैट मैटर्स। वहाँ पे तो तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या-क्या सीखे हो वहाँ से, ये सीखी। आगे जाके अगर यस तुम सर। के मुड़ के देखोगे तो बोलोगे कि ये चीज़ तो वहाँ करते थे, दिस इज़ गुड। आज हम देखते तो हमें लगता है कि यार कॉलेज के फेस्ट वगैरह होते थे। क्या होता है फेस्ट? टाइम वेस्ट है, टेक्निकल नहीं है। नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत स्किल्स होती है, सॉफ्ट स्किल्स होती है, आपकी इम्प्रूव होती है उन चीज़ों से। इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ डांस कर लिया तो यार डांस से तो मेरा करियर थोड़ी बनेगा। डज़ नॉट मैटर। वो आपको स्टेज पे लाना सिखा रहा है, आपको बोलना सिखा रहा है, सिखा रहा है। सो एवरीथिंग इज़ इट्स इम्पोर्टेंट। आपको जो सही लगता है वैसे वो करो। करने चाहिए क्या तुम इन शॉर्ट इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन देके उसको करने चाहिए था कि तो अगर आपको मौका मिल रहा है प्लीज़ करो, अच्छी चीज़ है। श्योर सर, ज़रूर करेंगे। सर कैन यू शेयर any project which you created during your college life which really helped you in your career? Anything? I'm not sure any project specifically helped me in the career. It was something a bunch of these things. So see, college projects until unless you are someone out of the world who's creating something आजकल होते हैं 15 साल के बच्चे ऐप बना रहे हैं बिलियंस में एक्वायर कर रही कंपनियां सो इफ दैट थिंग डेफिनेटली हमारे पॉइंट पे तो वी मेक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफिशियल मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स इन फोर्थ ईयर और उसके अलावा बहुत सारी चीजें बनाई हैं बट इट वाज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी हाउ एग्जैक्टली वी कैन पुट थिंग्स कुछ नया सीखा है लेट्स पुट इट इन प्लेस कैसे बनाते हैं मेरे को याद है जावा सर्टिफिकेशन आई हमारे विवेक सर थे उन्होंने स्विंग सिखाया था तो वो अभी आया नहीं था अभी भी हैं सर, हाँ अभी भी हैं सर विवेक सर। विवेक सर जावा वाले हाँ, अरे नाइस नहीं सी प्लस प्लस भी पढ़ाते हैं वो। सी दैट आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्टली कौन से विवेक सर है बट हाँ होंगे यार मैं उसमें मना नहीं कर रहा काफी सारी फैकल्टीज अभी भी है वहाँ पे एंड दैट्स वेरी नाइस ऑफ द कॉलेज एक्चुअली सो तो एक चीज़ वहाँ पता चली थी, मैंने उनसे करिकुलम माँगा था कि आगे क्या होगा? उन्होंने बोला आगे स्विंग्स बताएँगे आपको, उसमें एक विंडो बनती है एंड मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, एक विंडो बना, उसपे लिखा था एक अलर्ट प्रॉम्प्ट था, बटन दबाओ, अलर्ट आ जाएगा। सिंपल। आई वाज़ लाइक वॉव! यार मैं ये कर सकता हूँ, दैट इज़ गुड। मैं अपनी खुद की विंडो बना सकता हूँ। दैट वाज़ fascinating फॉर मी एट दैट मोमेंट। तो मैं कुछ भी करता रहता था कि यार विंडो बनाते हैं उसमें कोई कुछ डाल देते हैं, स्नेक गेम बना दिया, टिक टैक टो बनाया। वो सी शार्प में बनाया था हमारा एक प्रोजेक्ट था कि यार एक हमें विंडोज़ ऐप के लिए बनानी है, वो पब्लिश्ड ऐप बनानी है। जब विंडोज़ 8 चलता था ना, यस सर। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए, कई सारे प्रोजेक्ट तो मेंशन भी नहीं है कहीं रिज़्यूमे में भी, बट हमारे लर्निंग के लिए थे। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा टची प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ जो हमने बनाया था, वो था जैसे ये गेम्स वगैरह बनाता था मैं, तो मैंने उसमें मेरे को वो बहुत शौक था कि यार आई डिडन्ट हैव दैट टच फ़ोन, राइट? और विंडोज़ नया वो लैपटॉप उसमें टच भी चलता था। आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो। सो एट दैट मोमेंट आई हैड द बहुत फ़ैसिनेटिंग होता था कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। सो आई मेड एन ऐप उसमें 4 ब्लॉक्स होते थे। वन हैज़ गेम, वन हैज़ समथिंग एंड एक में हम मैंने एक चैटबॉट बनाया था अपने फ्रेंड के साथ मिलके वेब सॉकेट्स वगैरह यूज़ करके कि मैं डीआर और हॉस्टल में बैठा हूँ, वो एचआर में बैठा है। हमें हमारी आईपी पता होनी चाहिए व्हिच वी कैन वो बता सकते हैं कि यार मेरी आईपी प्राइवेट आईपी ये है। वी कैन कनेक्ट विथ एंड वी कैन चैट विथ ईच अदर। वी कैन डू लाइक अ टीम व्यूअर काइंड ऑफ थिंग जो मैंने प्रेज़ेंट भी करने की कोशिश की थी किसी हैकाथॉन में कि हम एज़ अ टीम व्यूअर सामने वाला बंदा मेरी स्क्रीन पूरी देख सकता है एंड समहाउ वी कैन यूज़ इट क्लिक थिंग्स अराउंड दैट बहुत लेमन वे में बहुत इट वाज़ स्मूथ एक्चुअली बट वीडियोज़ वगैरह प्ले नहीं कर सकते, साउंड शेयर करने में मुश्किल हो रही थी। बट हाँ, बहुत सारी वैसे चीज़ में बनाई थी तो ये सारी चीज़ें जो बनाई थी मैंने एक विंडो बड़ी विंडो के अंदर डाल दी थी जिसमें 4 सेक्शंस थे एंड आई वाज़ वर्किंग लाइक कि अगर मैं ड्रैग करके माउस पे ऐसे करेंगे, इट शुड स्क्रॉल
जैसे आप करते हो ना आजकल फिंगर स्क्रॉल या फिंगर से करते हैं, तो माउस से भी होता है, अगर आप कहीं देखो तो। हाँ सर। तो वो फीचर्स बना के सबको एक बंडल में डाल के रख दिया था। वो चीज़ लगती थी कि यार सही यार, वो चीज़ काफ़ी क्लोज़ था। आज भी मेरे पास उसका कोड पड़ा होगा, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, बट हाँ, दैट वाज़ द इनिशियल पार्ट। एंड ये चीज़ें बनाने से या करने से वो एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ी कि यार ये चीज़ अच्छी है। अगर ये लोकल लेवल पे बना सकते हैं तो एंटरप्राइज़ लेवल पे तो और अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अगेन प्रोजेक्ट्स 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो आता है कि आपको पास करना है, राइट? वो यस। ज़रूरी है, माइनर वाला। और यूजुअली वो प्रोजेक्ट्स लेंथी होते हैं। मैं नहीं बोलूँगा, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला, बट उससे पता चला कि कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम भी बहुत बड़ा हो सकता है, राइट? बेसिक लाइब्रेरी सिस्टम। बट ये जो छोटी-मोटी चीज़ें करी, ये सिखाई कि यार आप कैसे क्विकली किसी नई चीज़ पे आ सकते हो। सर्टिफ़िकेशंस होता है। आपने कुछ नई चीज़ सीखी, कैसे यूजुअली डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके देख रहे हो। क्योंकि आपको आपकी कॉर्पोरेट लाइफ़ में करना पड़ेगा। हम बैंक रहे हैं, एआई आया है, हमें एआई सीखनी पड़ रही है कि यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? हाउ एक्ज़ैक्टली यू यूटिलाइज़ दैट? कल को कोई तीसरी चीज़ आएगी तो इट्स कंटीन्यूअसली इवॉल्विंग, यू हैव टू डू दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो द मार्केट एंड लर्न। मार्केट भी नहीं बोलूँगा, किसी कंपनी में हो तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइन्ड, मैंने जो भी कंपनी जॉइन की है, मोस्टली उनमें ना कॉन्टेक्स्ट चेंज होता था। आई स्टार्टेड विद पाइथन। टेक्स्ट कंपनी में गया, मैं बोला कि हम पाइथन तो यूज़ करते नहीं है। यू हैव टू लर्न नोड जेएस। ठीक है, गिव मी 15 डेज़, आई विल स्टार्ट विद नोड.जेएस। स्टार्ट किया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली, शुरू हो गए काम करते-करते, धीरे-धीरे 1-2 महीने में अच्छा हो गया। तो फिर कंपनी चेंज किया, वो बोले कि आपको हैकलाइन पे काम करता है। अभी आया, आपको बोले कि डॉटनेट पे काम करना है, फिर कोई बोलता है जावा पे काम करना है। सो मेन थिंग इज़ दैट ओनली, वो जो चीज़ें हमने इनिशियली की, इट क्लियर्स आवर बेसिक्स। अब आप आके बोलो कोई भी लैंग्वेज पे काम करना है, गिव मी 15 डेज़, 1 वीक, रैंप अप करेंगे, नहीं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। अब तो एआई आ गया, कोड वो लिख देता है। हाँ बस सर। आपको पूरा कोड सर एआई लिख देता है, पूरा का पूरा। तो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर तुम वो जानना चाहो, कोड लिखना तो सबसे एंड पार्ट होता है। एक कॉलेज का बच्चा है, स्कूल का बच्चा भी कोड लिख देगा। यस सर। ओनली 20% ऑफ द वर्क यू विल डू। हाँ, मेरे को कोडिंग करनी है, करना है, बट अल्टीमेटली टाइप करना, कोड इज समथिंग एक्सक्लूसिव। आज के टाइम में स्कूल का बच्चा भी कर लेता है। यस सर। वो ज़रूरी होता है, मना नहीं है उस चीज़ में, बट उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी होती है। कोड तो सबसे एंड पार्ट है कि यार मैंने सब कुछ कर दिया, सब प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह गाइडलाइन सब हो गया। उसके बाद अगर मैं कोड करने को एआई को भी दूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। यस सर। इट्स नॉट अबाउट कोडिंग इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट ऑल। ये मेरा मिसकंसेप्शन था स्टार्टिंग में, जब मैंने आया कि कोडिंग आनी चाहिए और कुछ नहीं होता। नहीं भाई, आगे और कुछ होता है, और ग्रेजुअली तुम सीखोगे। अभी तुम कोडिंग पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हारा अभी मेन फोकस वो है। ज़रूरत नहीं तो है कोडिंग इज द इनिशियल स्टेप्स। यार, इट्स अ बेस। इट्स अ बेस। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये लाइन लिखा है तो उसका क्या मतलब है? हाउ डज़ इट एक्चुअली अंदर क्या काम हो रहा है? मैं लिख रहा हूँ a + b = c, ठीक है, या 2 + 2 4 होता है, लिख दिया। सिस्टम कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? मैंने बोला कि आप उसमें चले जाओ 8086 माइक्रो कंट्रोलर की, यार ये दबाएँ, दबा सीखना। नहीं, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हर एक लैंग्वेज का प्रोसेसिंग होता है। एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कैसे काम करता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्रेडिंग हो गया, पैरेलल प्रोग्रामिंग हो गया, वो चीज़ें जब आप आगे पढ़ोगे वो आएगा। अभी ज़रूरत मैं नहीं बोल रहा कि खोल के पढ़ लो, बट जब भी करते हो तो वो पता होना चाहिए कि अंदर कैसे काम होता है। ये बोल दोगे कि यार a + a लिखा तो क्या वो 3 into 4 कर रहे हो, तो क्या वो 4 को 3 बार प्लस कर रहा है? अंदर क्या, थोड़ा-सा लॉजिक पता होना चाहिए कि अंदर चीज़ें कैसे चलती है। आपका जेवीएम जावा में करो क्या होता है, कंपाइल कैसे होता है कोड, बेसिकली आपने एक ऊपर डाल दिया कि इंक्लूड समथिंग, कैसे इंक्लूड होता है, कहाँ से लाते हैं। बेसिक आस-पास की चीज़ें, आप एक लाइन का कोड लिख रहे हो, वो रन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इस लाइन को कोड लिखने के लिए क्या-क्या चीज़ें थी और वो कैसे काम कर रही है, कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और पहले तो बुक्स में ढूँढना पड़ता था, अब तो सीधा एआई को पूछो या गूगल को पूछ लेते थे पहले, तो कोई दिस इज़ वेरी गुड बेसिकली। तो वो बेस क्लियर करना ज़रूरी है और वही मेन चीज़ है, बाकी यस सर। चल जाए। इन कॉलेज लाइफ बेसिक्स बेसिक्स पे बहुत
फोकस किया जाता है फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट सेम में सिर्फ हमें सी लैंग्वेज का जो बेसिक है वो पढ़ाया जाता है, मतलब वी डोंट गो टुवर्ड्स एडवांस। द बेस स्टेप्स लाइक आई कैन से सी द लाइक वी नो। सो एंटायर फर्स्ट ईयर हमने सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पे फोकस किया था, सी एंड सी प्लस प्लस। दैट वाज़ इट। डीएसए सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जाने से पहले आप कोई एक पीस ऑफ एडवाइस अगर स्टूडेंट्स को देना चाहो, कुछ भी? Yeah, if you're asking me for advice, that's funny. Uh, See, I'll just say, keep, if you want to succeed, this line I'm not gonna use. कि आपको सक्सेस के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं। सीधा ये बोलूँगा, अगर पीस ऑफ एडवाइस समवन वांट्स व्हिच आई लर्न्ड इज़ व्हाटएवर यू डू, डू पैशनेटली। यार ये चीज़ कर रही है, मेरे को करनी है। हाँ, थोड़ी चीज़ें ऊपर-नीचे होगी यार, लाइफ होती है, बट हार नहीं मानना है। बस करते रहो एंड यू कैन डू एवरीथिंग, कीप इन योर माइंड ऑलवेज सेज समथिंग टू यू व्हिच इज़, कोई मैनिफेस्टेशन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, दैट आई विल डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, एक बार में अगर चीज़ें होती है, नहीं होती है, रिज़ल्ट का ध्यान नहीं है। और इवन इफ यू आर नॉट डूइंग, और आप कुछ कर रहे हो और आप सक्सेस नहीं मिल रहा है, दैट्स अ लर्निंग फॉर यू। So there is one line in NLP, actually it's very famous. It's not a failure, it's a feedback. So always focus on that. जो चीज़ अंदर से लगे ना कि यार ये करना है मेरे को, in terms of choosing any field or anything, you should do it. Don't stop yourself around that कि लोग क्या कर रहे हैं या चीज़ें। अवेयरनेस होना ज़रूरी है, बट फिर तो तुम वही करोगे ना जो सब कर रहे हो, तो फिर अपनी इच्छा का क्या कर रहे हो? फिर क्या मतलब है? अल्टीमेटली इसका सेंस नहीं है। सो और एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, डू एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन कॉलेज। और सबसे लास्ट ये कि अपने सीनियर्स अगर तुम्हारे हैं, तो उनसे कनेक्शन बनाओ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को 12 साल हो गए हैं। ठीक है? द वन हू आर एक्ज़ैक्टली लिविंग द लाइफ यू आर गोना लिव इन नेक्स्ट 2 इयर्स और 1 ईयर, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सीनियर्स हैं, ठीक है, कनेक्शन बनाओ उनसे, इवन वो कॉलेज में है या नहीं है, इफ यू कैन डू इट, दैट्स वेरी ग्रेट। सो ये 3 चीज़ें बोलूँगा, नेवर लूज़ होप, ऑलवेज़ गो अहेड विथ व्हाट यू लाइक। जो अंदर से आवाज़ आती है उसको फ़ॉलो करो, हार नहीं मानना है। कॉलेज में कोडिंग या टेक्निकल चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, करो, इट विल इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स, इफ इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस इन मच मच 10 फोल्ड्स ऑफ इट। आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड who did engineering in computer science. He is marketing head right now. There's not in computer science branch. वो बंदे को आप बात करो, आप you can't hold him. He's so good in speaking, explaining things, presenting around that part. हमें लगता था इंजीनियरिंग में गलत आ गया बंदा ये। उसने इंजीनियरिंग भी करी, उसने कोडिंग के लिए भी ट्राई किया, इंजीनियरिंग रोल भी ट्राई किया, देन अल्टीमेटली चूज हिज पाथ बिकॉज़ उसको अंदर से था कि मेरे को ये करना है। तो फर्क नहीं पड़ता इंजीनियर है या नहीं है वो। इंजीनियर कैन डू एवरीथिंग फॉर द पार्ट। तो अभी एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग हेड है। मार्केटिंग हेड है, दैट्स अ वेरी बिग पोजीशन एक्चुअली। दैट्स वेरी रेपुटेटेड पोस्ट। सो वो चीज़ दिखाती है कि यार आपका मन है, आपको करना है तो करना है। तो प्लीज़ गो अहेड विद दोज़ थिंग्स एंड अपने सीनियर्स को साथ लेके चलो, उनसे कनेक्शन बना के रखो। इट विल हेल्प यू। श्योर सर। यू वोंट इमेजिन हाउ मच इट विल हेल्प यू। हुँ। थैंक यू सो much, sir, for being here. It really means a lot for all of us. I think this podcast will help a lot of students, a lot really, who are currently in the field of tech and even the graduates. Thank you so much, sir. And thank you so much for even considering me or bearing with me for last 1 hour. 1 hour, you asked me one question, I might have been, giving you too much things around that because see, I always one thing I wanted to do is give back to the community. What I got from our college, I can't measure. Uh, वो बोलते ना, जैसा भी है, कॉलेज तो हमारा ही है. And it is a very good, and it is a very good college, I would say.
and it is give us a lot of memories around that. And if you are over there, please take care of and make your college proud and do things no one can imagine in a good way. Ha, sure, sir. Hello, yeah. Thank you so much, sir. Enjoy. And again, thanks everyone.